Jai Hind student, welcome to biology class. Students, in this lecture we will discuss the feedback mechanism of hormones. This is the last lecture of this control and coordination in animal. Okay, so first let's discuss uh, the introduction part कि feedback mechanism होता क्या है and why there is a need of feedback mechanism. So student, as you all know, the excess or deficiency of hormone they has a harmful effect on our body. चाहे excess हो means चाहे हाइपर सिक्रीशन हो या डेफिशिएंसी हो, दैट मीन्स हाइपोसिक्रीशन हो, दोनों ही केस में जो हार्मोन्स होते हैं दे हैज़ अ हार्मफुल इफेक्ट, मीन्स दे कॉज सम डिजीज़ इन अ बॉडी. फॉर एग्जाम्पल आई से the deficiency of insulin hormone, it results in a disease called diabetes, whereas if the insulin hormone is excess in the body it can lead to the situation of coma. ठीक है, आदमी कोमा में चला जाता है अगर ये इंसुलिन हार्मोन जो है वो एक्सेस में हो जाए बॉडी में. सो इट इज़ नेसेसरी दैट द हार्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय द ग्लैंड्स इन अ बॉडी इन प्रिसाइज क्वांटिटी. सो ये बहुत ज़रूरी है कि जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं ग्लैंड से वो बहुत ही प्रिसाइज एक्यूरेट क्वांटिटी में सिक्रीट हों एंड विच आर रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ हार्मोन्स इन आ बॉडी. सो मीन्स यहाँ कहने का मतलब है कि हार्मोन उतना ही सिक्रीट हो और उसी टाइम सिक्रीट हो जब वो रिक्वायर्ड हो फॉर बाय द बॉडी. So there is a mechanism that is known as feedback mechanism in order to regulate the timing and amount of hormone released by various glands. Okay, so the timing and amount of hormone released by various glands is regulated by a mechanism which is inbuilt in our body. Inbuilt माने होता है कि वो पहले से ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है. ओके, ये ऑटोमेटिक होता है and this mechanism is known as feedback mechanism. Okay, for instance, it is due to this mechanism that pancreas produce more insulin when glucose level rises. Insulin decreases glucose level. So what happen when the glucose level rises in our body, in the blood? So what happen, pancreas it starts secreting the hormone that is insulin, and this insulin hormone it decrease the glucose level. Similarly what happen, just इसका reverse होगा, when the blood glucose level falls than normal. अगर वो जो नॉर्मल में जितना रिक्वायर्ड है ग्लूकोज वो नॉर्मल से कम हो जाएगा, देन व्हाट विल हैपन, द पेनक्रियाज विल प्रोड्यूस मोर ग्लूकागॉन. ठीक है, और वो ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करेगा, वाई, टू इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल. दिस आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर कि ये जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन होते हैं दे एक्ट एंटागोनिस्टिक. एक लेवल को कम करेगा और एक लेवल को इंक्रीज करेगा व्हेन देयर इज़ अ फॉल ऑफ blood glucose in blood. So thus this feedback mechanism is regulated here and it is very important for proper functioning of our endocrine gland. Now these feedback mechanism are of two types. एक है negative feedback mechanism and the other is positive feedback mechanism. Now let's discuss कि negative feedback mechanism क्या होगा. सबका मोटिव मेन एक ही है कि बॉडी में जो भी हार्मोन का एक्सेस है या डेफिशिएंसी है उसको नॉर्मलाइज करना. नाउ दिस नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इट अकर्स व्हेन द ओरिजिनल इफेक्ट ऑफ द स्टिमुलस इज रिड्यूस्ड बाय द आउटपुट. नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म नॉर्मलाइज द थिंग्स व्हेन दे स्टार्ट बिकमिंग टू एक्सट्रीम. नाउ क्या है, जो जिस वजह से जो हार्मोन है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ, ओके, उसको ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है, नॉर्मलाइज करता है. मीन सपोज इफ़ द हार्मोन इज सिक्रीटेड इन एक्सेस अमाउंट देन दिस नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हेल्प्स टू नॉर्मलाइज द थिंग्स. For example, thyroid gland is regulated by negative feedback mechanism. How? Let's see. The hormones secreted by hypothalamus. So as you all know, hypothalamus दो हार्मोन सिक्रीट करता है, एक रिलीजिंग हार्मोन एंड एक इनहिबिटिंग हार्मोन. Now what happen, this releasing hormone will be secreted and this
will stimulate the pituitary. अब ये pituitary gland को stimulate करेगा hypothalamus, किस लिए? To release thyroid stimulating hormone. And this in turn, this thyroid stimulating hormone will in turn, it will stimulate the thyroid gland. It will trigger the thyroid gland to release which hormone? Thyroxine hormone. So तो ये एक साइक्लिक फॉर्म में होता है. हाइपोथैलेमस जो है ट्रिगर करेगा पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी किसको करेगा? उस पर्टिकुलर ऑर्गन को जिससे हार्मोन सिक्रीट होना है. नाउ व्हेन द थायराइड लेवल इंक्रीजेज, नाउ व्हाट विल हैपन? दिस लेवल विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट होने लगेगा. नाउ व्हेन इट विल इंक्रीजेज, द हार्मोन स्टॉप्स द सिक्रीशन ऑफ थायराइड रिलीजिंग हार्मोन बाय द हाइपोथैलेमस. ओके, अब क्या होगा? जब लेवल बढ़ जाएगा तो जो रिलीजिंग हार्मोन होगा वो स्टॉप हो जाएगा. ओके, एंड सिमिलरली जो पिट्यूटरी ग्लैंड होगी वो भी स्टॉप कर देगी सिक्रीशन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बाय द फीडबैक मैकेनिज्म. तो जो हाइपोथैलेमस होगा वो कौन सा फिर इस समय हार्मोन रिलीज़ करेगा? इनहिबिटिंग हार्मोन, टू इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ थायराइड लेवल. So the secretion of hormone by thyroid gland is inhibited without the stimulation of thyroid stimulating hormone. So अब क्या होगा? जो हार्मोन सिक्रीट हो रहा था, that secretion is inhibited. Now the thyroid level falls very low. अब क्या होगा? जब इनहिबिट हो गया तो लेवल बढ़ जाएगा. सो इन दिस वे ये जो है इसी तरह जो है फीडबैक मैकेनिज्म जो है ऑपरेट होता है. जब कम होगा हार्मोन का लेवल तो क्या होगा? फीडबैक मैकेनिज्म ऑपरेट करेगा और उस हार्मोन के रिलीज़ को इनिशिएट करेगा, और जब वो ज़्यादा हो जाएगा तो वो स्टॉप हो जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. Now it occurs when the original effect of the stimulus is enhanced by output. Enhanced by माने मीन्स कंडीशंस जो है जब एक्सट्रीम हो जाती हैं इस मैकेनिज्म में, उस मैकेनिज्म में जो कंडीशन एक्सट्रीम हुई थी उनको नॉर्मल लाया गया था, पर यहाँ पे एक्सट्रीम हो जाती हैं कंडीशंस. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एज मिल्क इज सिक्रीटेड बाय मदर्स मेमोरी ग्लैंड. ओके, इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक. किस तरह होता है? लेट्स सी. While suckling, the nerve sends signals from the nipple to stimulate the pituitary gland to secrete prolactin. So what happened when the baby suck the milk? So क्या होती हैं? जो nerves present होती हैं वो signals भेजती हैं nipple से कहाँ? pituitary gland के पास, to stimulate the secretion of prolactin. क्योंकि आपको पता है पिट्यूटरी जो है बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है. ग्रोथ हार्मोन है, देन फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देन प्रोलैक्टिन, तो उसी में से एक प्रोलैक्टिन है. ओके, तो ये जो है स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी को प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रीट करने के लिए, और प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो ट्रिगर करेगा मेमोरी ग्लैंड को इन टर्न टू सिक्रीट मोर मिल्क. ओके, सो एज द बेबी suckles more milk, more prolactin is secreted and more milk is produced. सो जैसे जैसे बेबी जो है बेबी विल सक द मिल्क, सो मिल्क की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी और प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीट होगा इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मोर मिल्क. ओके, सो इन दिस वे यहाँ पे कंडीशंस जो हैं वो एक्सट्रीम्स हो रही हैं. मीन्स इट इज़ नॉट द नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल से ऊपर. सो दिस इज़ ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय फीडबैक मैकेनिज्म. means both the mechanism, whether it is extreme condition or it is to normalize the things, positive or negative feedback, both are controlled by feedback mechanism. Okay, so this is all for today. Now from next lecture we will start the control and coordination in case of plants. Animals we have completed, now we will start with plants. Thank you students.